Question number 29. Grapes hanging on the plant do not ferment, but after being plucked from the plant can be fermented. Under what condition do these grapes ferment? Is it a chemical or physical change? ओके तो फ्रेंड हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब भी ये जो ग्रेप्स होते हैं व्हेन इट इज ऑन द प्लांट सो देयर इज नो फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, बट व्हेन इट इज कट फ्रॉम द प्लांट फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट्स. So what are the conditions which is required for the fermentation process? Also I have to tell that is it a chemical or physical change. So friend, the point is that whenever the grapes are attached to the plants, then oxygen reach toward the cell of the grapes. So there is a aerobic respiration, and in aerobic respiration no fermentation takes place. But when the grapes pluck from the plant, then no oxygen reach toward the cell of the grapes. So there is the starting of anaerobic respiration, and it is the starting of the fermentation process. And whenever there is a fermentation process, then in this process sugar is converted into alcohol. So as in this process new substance alcohol is formed, it is a chemical change. So the type of this change is chemical change, and the conditions is that because the grapes are being cut from the plants, no oxygen reach toward the cell of grapes, and hence there is a anaerobic respiration, so the fermentation start. Question number 30. Which among the following are physical or chemical change? हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस दी गए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है उनमें से कौन से फिजिकल चेंज है और कौन से केमिकल चेंजेस है. तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंजेस का मीनिंग समझ लेते हैं. So friend, the changes which are temporary with no new substance being formed are known as physical change. ऐसे चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है उस चेंज को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज. और ऐसा चेंज कि जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उस चेंज को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. ऑप्शन नंबर ए, इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल. इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल में सिर्फ स्टेट चेंज होती है, सो इट विल बी द फिजिकल चेंज. बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. जब भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बर्न होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म, वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं. सो दिस इज द केमिकल चेंज. हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू द रेड हॉट. जब भी आयरन रॉड को हम लोग हीट करते हैं तब उसमें भी वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, सो दैट इज ऑल्सो द फिजिकल चेंज. Curdling of a milk. Whenever there is a curdling of milk, the new substances are formed, therefore it is a chemical change. And the last one, sublimation of solid ammonium chloride. So friend, solid ammonium chloride का जब sublimation होता है तब भी वहाँ पे सिर्फ state change होती है, कोई new substance form नहीं होता है, so it is also not a chemical change, that is the physical change. So from the given four option, evaporation of petrol is a physical change, burning of LPG, it is a chemical change, heating of an iron rod, that is the physical change, curdling of milk, that is the chemical change, and sublimation of solid ammonium chloride, it is the physical change. Question number 31. During the reaction of some metals with dilute hydrochloric acid, the following observations are made. Okay, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कुछ मेटल्स की यहाँ पे रिएक्शन की गई है और कुछ ऑब्जर्वेशन हमें नोटिस किया गया है. सो the observation number A is silver metal does not show any change. Okay, जब भी सिल्वर मेटल का रिएक्शन होता है या फिर रिएक्ट किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तब हमें वहाँ पे किसी भी प्रकार का चेंज नहीं नज़र आता है. सो फ्रेंड्स, तो ऐसा क्यों होता है सिल्वर मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट क्यों नहीं हो पाता है? अगर रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात की जाए तो सिल्वर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है, मीन्स सिल्वर मेटल इज लेस रिएक्टिव दैन द हाइड्रोजन. सो इसी के वजह से ये जो सिल्वर मेटल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. इसी की वजह से सिल्वर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है. इसी की वजह से सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द ऑब्जर्वेशन बी, द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड. ओके, सो फ्रेंड, जब भी एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, मीन्स ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक. इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है AlCl3, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड,
उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है. सो एज द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, so because of this the temperature of reaction mixture is rises. Observation C. The reaction of sodium metal is found to be highly explosive. Okay, so friend, whenever sodium reacts with the hydrochloric acid, that reaction is very highly explosive. The reason is that sodium metal is very reactive. It reacts explosively, means extremely rapidly, with the hydrochloric acid to form the sodium chloride. After that, hydrogen gas and large amount of heat is also produced in this reaction. So therefore, as the hydrogen gas is produced and as the temperature is also very much, it catches the fire. Hence we can say that whenever sodium reacts with hydrochloric acid, this reaction is highly explosive, means it catches fire. Observation D. Some bubbles of gas are seen when lead is reacted with the acid. Okay, जब लीड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट किया गया तब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस के कुछ बबल्स स्लोली अपीयर होते हुए हमें दिख गए. तो हमें इसका बताना है कि रीज़न क्या होगा. सो फ्रेंड, अगर रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात की जाए तो हाइड्रोजन के सिर्फ थोड़ा सा पहले लीड का नंबर आता है, मीन्स लीड इज स्लाइटली मोर रिएक्टिव दैन द हाइड्रोजन. सो इसी की वजह से जब भी ये जो लीड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट होता है, देन इट डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम HCl वेरी स्लोली. सो देयरफॉर ओनली बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर सीन इन द रिएक्शंस. द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज like this: lead plus hydrochloric acid gives lead chloride plus hydrogen gas is evolved. Question number 32. A substance X, which is an oxide of group 2 element, is used intensively in the cement industry. This element is also present in the bone. Okay, on treatment with water, it forms a solution which turns red litmus blue. Identify X. Okay, हमें उस X को आइडेंटिफाई करना है and also write the chemical reaction involved. ओके, तो फ्रेंड हमें एक सब्सटेंस दिया गया है जिसका नाम हमें आइडेंटिफाई करना है. वो सब्सटेंस को यहाँ पे लिखा है X और उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. उस इन्फॉर्मेशन से हमें उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है. तो चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या है. सो फ्रेंड, दैट दिस सब्सटेंस X इज द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट. ओके, मीन्स ये जो सब्सटेंस है वो तो ऑक्साइड है, ये तो पता चल गया. और वो किसका ऑक्साइड है कि जो एलिमेंट ग्रुप 2 में है उसका वो ऑक्साइड है. दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन. सेकेंड थिंग, इट इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री. ये जो सब्सटेंस X है वो सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है. ये सेकेंड हमें हिंट दी गई है उस सब्सटेंस के बारे में. एंड थर्ड थिंग, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द बोन. ओके, वो बोन में भी प्रेजेंट होता है. सो फ्रेंड, अगर इन तीनों हिंट का अगर हम एनालिसिस करें तो हमें वो सब्सटेंस यहाँ पे पता चल जाता है कि दैट सब्सटेंस इज कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO. क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो इट इज द ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम एंड इट इज अ ग्रुप 2 एलिमेंट. सेकेंड थिंग दैट कैल्शियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बोन. एंड थर्ड थिंग दैट दिस कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि क्विक लाइम भी कहा जाता है, वो सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है. सो दैट सब्सटेंस मस्ट बी calcium oxide. And when this calcium oxide is treated with water, then it forms the calcium hydroxide, CaOH twice. So friend, ये calcium hydroxide जो फॉर्म होता है, जो कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी के साथ में ऐड करते हैं तो उसका नेचर होता है बेसिक. मीन्स अगर इसमें हमने रेड लिटमस पेपर ऐड किया तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू. ओके, so the final answer of this question is the substance that is an oxide of group 2 element and which is used intensively in cement industry is calcium oxide. वो जो substance X है वो है calcium oxide. Okay, और when this calcium oxide on treated with water, it forms the calcium hydroxide key, which have a basic nature. And the equation of this reaction is like this: CaO, that is calcium oxide, reacts with water, that is H2O, gives CaOH twice, that is the calcium hydroxide, which is a basic in nature. Therefore, the red litmus paper turns blue.